Good morning, students. In last lecture, we have discussed the Minkowski inequality and Holder's inequality for finite sum, infinite sum, and for integrable functions. We have discussed this. Now today we are discussing some examples of Banach space. First example is a R in set of real numbers. Set of real numbers is a Banach space. Banach space प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना था? This is non-linear space plus complete. Non-linear space we have already proved and complete ये हम ग्रेजुएशन में ही पढ़ चुके हैं. Space complete कब होता है? When every Cauchy sequence is convergent. And for R, every Cauchy sequence is convergent. So R is a Banach space. Second example is C. C is set of complex numbers. This is also a Banach space because this is non-linear space, and by same reason, every Cauchy sequence is convergent in C. So this is Banach space. Third example is Rn. Rn means Euclidean space. Euclidean space is a set of n tuples of real numbers. Clearly, we know Rn is a linear space with respect to the composition x1, x2, xn plus y1, y2 up to so on yn. हमने is equal to x1 plus y1, x2 plus y2 up to so on xn plus yn. यहाँ हमने कंपोजिशन बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन किया कि अगर हम Rn के दो एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं तो उनका सम हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे. एंड फॉर अल्फा बिलोंग्स टू R, अल्फा हमने यहाँ कोई भी स्केलर कंसीडर किया हुआ है. नाउ वी डिफाइनिंग अ नॉर्म. यहाँ हम नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं. नॉर्म हमने क्या डिफाइन की? Rn टू R S. कैसे डिफाइन की है नॉर्म हमने? नॉर्म x इज इक्वल टू समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to n mod xi स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2. ये डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है. वेयर x बिलोंग्स टू Rn और Rn का एलिमेंट n टपल फॉर्म का है. क्लियरली फर्स्ट थ्री एक्सियम्स आर होल्ड. सेटिस्फाई कर रहे हैं फर्स्ट थ्री एक्सियम्स. यू कैन चेक. टू प्रूव द फोर्थ एग्जाम क्या है आपका? ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी. वी प्रूव these two inequalities. First inequality is Cauchy inequality. Cauchy inequality की हम स्टेटमेंट दे रहे हैं. If x and y are two n tuple form elements, means Rn के अगर ये एलिमेंट्स हैं, then summation I varying from 1 to n mod xi yi is less than equal to summation I varying from 1 to n mod xi square raised to power 1/2 summation I varying from 1 to n mod yi square raised to power 1/2. ऑलरेडी आप ये पढ़ भी चुके हो Cauchy inequality ग्रेजुएशन में. हम प्रूव कर रहे हैं इसको. इफ x और y अगर एक भी कोई जीरो हो जाता है देन नथिंग टू प्रूव. तो सपोज x is non-zero and y is non-zero. Now here we defining ai and bi. ai is equal to mod xi square divided by summation I varying from 1 to n mod xi square, and bi is equal to mod yi square divided by summation mod yi square. Now this is equal to, by definition of norm, denominator becomes norm x square and here denominator becomes norm y square, and both these are greater than 0 because mod and norm both are non-negative real numbers. Now we know that geometric mean of two non-negative numbers is less than equal to their arithmetic mean. So using this result we get under root ai bi is less than equal to sum, means arithmetic mean ai plus bi divided by 2. Then putting the value of ai and bi, we get this result, and taking summation as I varying from 1 to n, we get this result. Now taking summation here left hand side becomes this, and on taking summation on right hand side, ये आपके पास ऊपर summation लोगे, summation I varying from 1 to n, ये फिर आपका क्या बन जाएगा? norm बन जाएगा ऊपर summation लेने के बाद. तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 1 और ये भी आपका 1, तो वैल्यू हो गई 2. 1/2 into 2 वैल्यू आ गई आपकी 1. Now this implies, now shifting the denominator right hand side, we get this result, and now summation I varying from 1 to n mod xi yi is less than equal to these two terms. Now on putting the values of norm x and norm y, so we have proved the Cauchy inequality. Now we prove Minkowski inequality. That if x and y are two n tuples element of scalars, then summation I varying from 1 to n mod xi yi square raised to power 1/2 is less than equal to, या ये आप ऑलरेडी कर भी चुके हो मिंकोवस्की इनइक्वालिटी. ये सम पे खुलती है आपकी. प्रूफ में देखो हम कंसीडर करके क्या चले हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये टर्म कंसीडर करके चले हैं, मींस हमने अंडर रूट को छोड़ दिया है. नाउ दिस इज इक्वल टू समेशन ब्रेक कर लिया हमने. इस स्क्वायर को लिख सकते हैं mod xi plus yi into mod xi plus yi. नाउ टेकिंग फर्स्ट टर्म एज इट इज और सेकंड टर्म पे रिजल्ट यूज करो. mod a plus b is less than equal to mod a plus mod b.
और वो यहाँ आपका मल्टीप्लीकेशन में आ चुका है। नाउ अप्लाइंग कोशिश इनइक्वालिटी, कोशिश इनइक्वालिटी आपकी प्रोडक्ट में चल रही है, यहाँ हमने कोशिश इनइक्वालिटी अप्लाई की, कोशिश इनइक्वालिटी अप्लाई करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। नाउ डिवाइडिंग बाय दिस टर्म, इस टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं अंडर रूट वाले टर्म से, अंडर रूट वाले टर्म से आप डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी स्क्वायर में चल रही थी ना, इसमें कुछ ले ही नहीं रखा था आपने, पावर 1 थी, पावर हाफ आपकी कैंसिल होकर पावर क्या बच गई, हाफ बच गई, और राइट हैंड साइड पे ये टर्म आ चुके हैं जो आपको, ये जो आपकी कैंसिल होके ये टर्म्स आपके यहाँ से कैंसिल हो गई ना, ये वाली टर्म जो एक कॉमन टर्म चल रही थी, ये टर्म आपके पास बची हुई है, वही हमने यहाँ लिखी है। नाउ फ्रॉम मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी we get by definition of norm x plus y is less than equal to norm x plus norm y, this proves the triangle inequality, so Rn is a non-linear space। अभी हमें तो प्रूव क्या करना था, Rn is a Banach space, Rn को Banach space प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना रह गया, Rn is complete। Rn को अब हमने कंप्लीट दिखाना है, कंप्लीट दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी कोशिश सीक्वेंस कंसीडर करें Rn में तो वो कोशिश सीक्वेंस क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए, या तो ये प्रूव कर दो या फिर क्या दिखा दो, उसकी कोई ना कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ जाएगी। तो हम यहाँ क्या लेके चल रहे हैं, लेट xm बी एनी कोशिश सीक्वेंस इन Rn वेयर ईच xm इज एन टप्पल ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि xm जो कोशिश सीक्वेंस कंसीडर कर रहे हैं वो हम Rn के एलिमेंट्स के ले रहे हैं, और जो Rn के एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म के हैं, एन टप्पल फॉर्म के हैं। से xm, अब ये xm एलिमेंट आपका Rn का है तो किस फॉर्म का होगा, Rm का एलिमेंट है तो किस फॉर्म का होगा, एन टप्पल फॉर्म का एलिमेंट होगा Rn का एलिमेंट, तो x1 x2 टू सो ऑन xn, एन टप्पल्स आ गए इसमें, वेयर ईच xim बिलोंग्स टू R, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस फॉर गिवन ये हमने कोशी सीक्वेंस कंसीडर किया, कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट such that norm xm minus xl less than epsilon for all ml greater than equal to n नॉट, दैट इज यहाँ हम आपने क्या करना है, xm और xn जो ये आपके ट्रिपल की फॉर्म की थी वो वैल्यूज हम पुट करें अगर हम, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बाय 1 एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा ना, xm के एलिमेंट इस फॉर्म के हैं और xl के एलिमेंट में ऊपर जो चलेगा वो आपका क्या चलेगा, l, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे, फर्स्ट एलिमेंट आएगा x1 की पावर m माइनस x1 की पावर l, सेकंड एलिमेंट आएगा x2 की पावर m माइनस x2 की पावर l अप टू सो ऑन nth एलिमेंट, दिस इज लेस देन epsilon for all lm greater than equal to n नॉट। नाउ समेशन, यहाँ हम नॉर्म की डेफिनेशन फिर अप्लाई कर रहे हैं, क्या था आपके पास नॉर्म की जो डेफिनेशन थी, दिस नॉर्म इज इक्वल टू समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 टू n mod xi की पावर m minus xi पावर l स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 1 by 2 is less than epsilon for all ml greater than equal to n नॉट। Now taking squaring on both sides we get this result, if this sum is less than epsilon square then each term is also less than epsilon square because each term is positive, जब पॉजिटिव टर्म्स का सम तो ग्रेटर ही होगा, बड़ा ही होगा, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर है तो हर एक टर्म आपकी लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आएगी फॉर ऑल आई आ गया यहाँ पे। नाउ टेकिंग अंडर रूट ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस मोड इज लेस देन एप्सिलॉन, तो अब यहाँ डेफिनेशन लगाओ, ये फिर से क्या बन गई, कोशी सीक्वेंस बन गई, लेकिन कोशी सीक्वेंस बनी कैसी, xim वेयर m वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज अ कोशी सीक्वेंस, लेकिन ये कोशी सीक्वेंस अब Rn में नहीं आ रही है, ये कोशी सीक्वेंस आपकी R में आ रही है, क्योंकि जो ये एलिमेंट थे x1m x2m x3m ये किसके एलिमेंट थे, R के एलिमेंट थे, और आपको पता है R तो क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो ये कोशी सीक्वेंस क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, कन्वर्ज किस में करेगी, R के एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी, तो वो R का एलिमेंट यहाँ हमने क्या ले लिया, zi ले लिया, I क्यों लिया, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है I चेंज होगा ना इसमें, x1m x2m x3m ऐसे चलेगी नहीं आपकी, इसलिए हमने लिमिट z m टेंडिंग लिखा हुआ ना फॉर ऑल i, लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी xi रेज़्ड टू पावर m इज इक्वल टू zi, लेट z इज इक्वल टू, अब ये zi तो R का एलिमेंट है, लेकिन अब हमने तो कन्वर्जेंस किस में दिखानी थी, Rn के एलिमेंट को कन्वर्ज करके दिखानी थी, और Rn का जो एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म का होगा, n टप्पल फॉर्म का, तो वो एलिमेंट हमने क्या ले लिया, z1 z2 अप टू सो ऑन zn। अब हमें क्या दिखाना है कि जो हमने कोशी सीक्वेंस कंसीडर की थी वो कोशी सीक्वेंस Rn के एलिमेंट को मींस इस z को कन्वर्ज कर रही है। नाउ लेट अस प्रूव this Cauchy sequence xm converges to z in Rn। इसकी कन्वर्जन शो करने के लिए हमने क्या किया, m को फिक्स कर दिया और l को टेंड किया इंफिनिटी, जब हम m को फिक्स करेंगे और l को इंफिनिटी टेंड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ गई समेशन m, ये टर्म आई कहां से आपकी, ये ऊपर आपका चल रहा था, ये रहा चल रहा था ना आपका, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये टर्म आ गई, आपने क्या किया था, आपने वहां समेशन को हटा दिया था, आपने क्या कहा था, दिस सम
आपका जो चल रहा था वहां लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर था, तो अगर हर एक टर्म आपकी लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर चल रही है उसका सम, तो हर एक टर्म भी क्या चलेगी, लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर चलेगी। लेकिन अब हम रिजल्ट को उल्टा लेके चल रहे हैं, जो सिंगल के लिए था अब हमने उसकी समेशन लगा दी दोबारा से, वही वाली वो ये वाली टर्म कंसीडर किया हमने, समेशन लगी हुई वाली, समेशन लगी हुई वाली मींस ये वाली टर्म। इस टर्म में हमने काम किया है कि m को इन्फिनिटी टेंड, इन्फिनिटी एक को इन्फिनिटी टेंड कराना, दूसरे को एज इट इज रखना है, m को फिक्स किया और l को इन्फिनिटी टेंड कराया हमने। और जो ये वाली सीक्वेंस जो बनी थी ये कन्वर्स कर रही थी ना, क्योंकि वो कोशी सीक्वेंस बनी थी R में, और R में अगर कोशी सीक्वेंस है तो R कंप्लीट होने के कारण हर कोशी सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज कर रही थी, और कन्वर्ज किसको कर रही थी, Zi को, वो हमने यहाँ ये वैल्यू लिखी हुई है। फिर हमने यहाँ क्या लिया, इसका अंडर रूट लिया हुआ है, यहाँ से आपका एप्सिलॉन आ गया। अब ये टर्म आपके पास क्या बन गया, बाय डेफिनेशन ऑफ नोम, नोम xm माइनस z लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब xm दिस इज अ कोशी सीक्वेंस इन Rn, और जो z एलिमेंट है वो भी आपका किसका आ गया, Rn का। तो ये डेफिनेशन किसकी आ गई, कन्वर्जेंस की, सीक्वेंस xm जो है कन्वर्ज किसको कर रही है, z को इन Rn, सो Rn इज कंप्लीट एंड हेंस इज अ बनाना स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, ये आप जो एग्जांपल्स अब हमने किए ये एग्जांपल्स आप अच्छे से रीड कर लेना, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम, बाकी जो है फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।